India to reconsider and withdraw the following 3 ordinances and propose Electricity Amendment Bill 220 forthwith. The Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Ordinance of 220. The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance Farmers Services Ordinance 220 and the Essential Commodities Amendment Ordinance of 20. Even though the concerns and sentiments in the House were conveyed to the Prime Minister through 3 letters which I addressed to the Prime Minister, पहला मैं चिट्ठी लिखी जुलाई जून के विच कि साडे व्यूज ने ये नहीं होना चाहिए ऑर्डिनेंस विड्रॉ करो। जुलाई हाउस की सिटिंग तो बाद मैं हाउस के व्यूज उन्होंने दसे और तीसरी और जुलाई सितंबर में मैं एक और चिट्ठी लिखी उन्होंने कि आज तुम नहीं कर रहे कि नाल बड़ा हालात अच्छे नहीं पंजाब और देश के विच through letter number so and so Chief Minister of Punjab and Chief Minister of Punjab I wrote to him. The Government of India converted these ordinances to acts and notified the same as follows. फिर उन्होंने अपने 3 बिल बनाए. These 3 legislations, along with proposed Electricity Amendment Bill 220, are clearly against the interests of the farmers and landless workers. And time-tested agricultural market system established not only in Punjab but also in the original indigenous green revolution areas of Punjab, Haryana, and Western UP. Clearly, the Government of India has enacted legislation and not farm legislation, as the Constitution will show when I will speak mention them. These are also against the Constitution of India in 14, this 2, which comprises agriculture as a subject of the state. These legislations are direct attack and act of subterfuge to encroach upon the function and the power of the state inside the country's Constitution. In the opposite background, the Assembly sustained to unanimously reject these 3 legislations and the proposed Electricity Amendment 220. It once again urges upon the Government of India to not only to annul these legislations, but also promulgate a fresh ordinance making the procurement of food grains on the minimum support price a statutory right of the farmers and continue with the procurement by Government of India through the FCI and other such agencies. A message, एक resolution रखना चाहते हैं for discussion at any time. आपने हम क्या है कि मैं बिल पेश करा? मैं इन्हों पेश कराता मैं। ओके। सरकारी मता प्रस्ताव पेश किया गया कि राज्य की विधानसभा भारत सरकार को हुणे जहे घड़े कथित खेती कानून बारे किसानां दीयां चिंतावां दे हल नूं लैके अपनाए कठोर ते बेतरक वतीरे प्रति डूंगा खेद प्रगट करती है। विधानसभा ने मिति 28 अगस्त 2020 नूं एक मते राही भारत सरकार नूं जोर दे के कहा सी कि वो निम्नलिखित आर्डीनेंसां अते प्रस्तावित बिजली सोध बिल 2020 नूं मुड़ विचार के तुरंत वापस लवे। द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020 एंड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 भावें के पंजाब विधान सभा के सदन दीयां चिंतावां अते जज्बातां तो भारत के प्रधानमंत्री जी नूं मुख्यमंत्री पंजाब वालों उन्होंने पत्र नंबर CMO कांफी 2020/635 मिति 14 सितंबर 2020 राही जाणू कराया गया सी। फिर भी भारत सरकार ने उपरोक्त आर्डीनेंसां नूं कानूनां विच तब्दील करके हेठ अनुसार अधिसूचित कर दिता। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 24 सितंबर 2020, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 24 सितंबर 2020 एंड द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 26 सितंबर 2020 प्रस्तावित बिजली शोध बिल 2020 समेत ये 3 कानून
ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ, ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਂਟਰੀ 14 ਲਿਸਟ 2 ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਲਾਵੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। स्पीकर साहब, मैं आपको पेश कर रहा हूँ कि पहला था Foreign Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Special Provisions in Punjab Amendment Bill 220. दूजा Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance Policies Special Provisions in Punjab Amendment Bill 220. और तीसरा Essential Commodity Special Provisions in Punjab Amendment Bill 220. कि मैं आपको ये बेनती करना है कि ये बिल तुरंत ये पास किए जाए। प्रस्ताव पेश किया गया। एक जी जी वो एजेंडे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਆਈ ਨੋ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਪੀਸੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। just 1 minute The Farmer Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Special Provision and Punjab Amendment Bill 2020, the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Special Provisions and Punjab Amendment Bill 2020 and the Essential Commodities Special Provisions and Punjab Amendment Bill 2020 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭੀ ਸੇ Speaker Sahab, I present the Code of Civil Procedure, Punjab Amendment Bill 2020. Sir, I propose that the Code of Civil Procedure, Punjab Amendment Bill 2020 should be considered immediately. ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ 4 ਐਕਟ ਆਏ ਤੇ ਹੈ ਸੇਮ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। सीएम साहब। है जी बिल्कुल 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 तुम अपनी लिस्ट भेजो जी थोड़ी सी आई वैसे ही हो जाना बोलते बता दें मैं थोड़ा होर ज्यादा कर अद्धे तो ज्यादा कर दें अद्धे तो ज्यादा कर दें तो बारे ज्यादा बना दें पहला कोई गल
कोई तौहीन नहीं है। हाँ जी स्पीकर साहब, इस तरह करो, ट्रेजरी बेंचेस को तुम पौना घंटा पहला पौना घंटा से बोल रहे थे, पौने घंटे तैयारी हो चुकी जी, हाउस ना पकड़, नहीं तो शाम हो चुकी। सीएम साहब बैठो बैठो बैठो, सीएम साहब बोल रहे हैं, सुनो, बैठो प्लीज, बैठो चीमा साहब, प्लीज बैठो, चीमा साहब बड़ा सेंसिटिव इशू है, प्लीज बैठो। हाँ सीएम साहब। स्पीकर साहब, कदम तो ये गल चल रही है, मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं जिसके साथ ये डिस्कशन चल रही है। नहीं बिल बने लेट मी स्टार्ट विद शांतक, पहला था साडी गवर्नमेंट ने दिल्ली स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बनाया, इट इज हियर, और स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बीजेपी ने अपने मैनीफेस्टो भी पाई सी कि असं जब आवेंगे असं इंप्लीमेंट करेंगे, फिर जब आ गए फिर इन्होंने की और फिर उन्होंने अपना शांता कमीशन की रिपोर्ट भी बना दी है। आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर कि ये चीज़ा था, ये शांता कमेटी रिपोर्ट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस और मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट ये 2006 फाइनल रिपोर्ट नजर आई थी, एंड समिंग अप इज इन्होंने कि इकनॉमिक्स उन्होंने कहा कि जिहड़े अपने खर्चे खुर्चे ने बढ़ रहे हैं, इनपुट प्राइस होएगा, पर्टिकुलरली डीजल प्राइस बढ़ रहे हैं, और ये 2006 की गल है। While output prices are not keeping up with the rise of cost of production. Cost of production आप लिख दी गल कर रहे हैं कि वो लिंक भी ना होनी चाहिए। The minimum support price should not only continue, but should be listed with the wholesale price index. और उन्होंने फिर क्या मार्केट रिफॉर्म से भी इन्होंने कुछ जिक्र किया। नवी 2006 की गल, फिर उस तो बाद इन्होंने कहता बीजेपी ने असं अपने मैनीफेस्टो पावे, जो आ गए फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये लागू नहीं कर सकते, लेकिन असी शांता कमेटी शांता कुमार जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अधीन असी कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट 2015 के आ चुकी सी। इन्होंने आ रिपोर्ट है शांता कुमार की, एंड ही हैज सेड क्लीयरली कि MSP हटा दिया, इसका बड़ा नुकसान है, FCI शुड नॉट बी देयर, इसका देश में बड़ा नुकसान है, फ्री ट्रेड कर दोगे ना जेरे से सब कुछ लेके आए। नाउ आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनया, संविधान बनया साडे हिंदुस्तान में, उस संविधान के अधीन कुछ सब्जेक्ट्स ने विच आर स्टेट सब्जेक्ट्स, सम आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट्स, और स्टेट सब्जेक्ट्स एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया इस मुल्क को, जिन्हें सारे कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने चेयरमैन की उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और ये सारे जो फेडरल स्ट्रक्चर बनया कई साढ़े स्टेटा कई अधिकार से कि तुम अपने आप कानून बेस पे बनाओ, एक करके दूसरा तीजा करके खत्म कर दें। GST की गल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई थी कि सारी टैक्सेशन हुन विल बी डन बाय थ्रू द GST प्रोसेस, एंड वी गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दैट एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने बाद जो स्टेट्स को पैसे देने ने वो देते जाएंगे। कितने हुई महीने 7 महीने और कितना पैसा पंजाब को ड्यू, 9,000 करोड़ सानू ड्यू। वेयर आर द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी? तुम पावर साथ तो रहेगा, फिर तुम इंप्लीमेंट नहीं करते। दिस इज वन, ये एक चीज है। लेकिन दूजा खेती बाड़ी इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इट कम्स हियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ एंट्री 14 ਦੇ ਵਿੱਚ इट इज स्टेट सब्जेक्ट, तो एंट्री 14 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ इग्नोर करता, which says clearly
एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्सेट्रा इज डन। और 28 ने मार्केटां नूं रखना है, वो भी रद्द करता। इन्होंने आर्टिकल सेक्शन 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। 33 मीन ट्रेड इज एग्रीकल्चरल ट्रेड। ट्रेड हो सकती है जी तुम खरीद और फरोख्त करते हो, तुम मंडियां मुंडियां के बाहर पासे जाके अपनी चीज़ों को खरीदते हो बेचते हो, लेकिन आ ट्रेड तो नहीं कि जेड़ा कोई मेहनत करके खेती करके बीज बो के फिर हाड़ी जब फसल तैयार हारवेस्ट करता है, उन्होंने वाढ़ी लाता है, वो ट्रेड है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिस तरीके सोचते हो, यू मेक इट आउट इन सच अ वे कि तुम कन्विंस अपने आप को कर लो, पर दुनिया को कन्विंस नहीं कर सकते। हाउ कैन एग्रीकल्चर, अगर मैं आके उत्थे मटर बीजदा है और मटर से मैं बीजदा एज ए किसान और मैं मटर फिर खरीददा अपने बाग को मैं तोड़दा एंड आई यूज इट, कुछ मैं शायद ज्यादा मटर हो मैं शायद डिप्टी स्पीकर साहब को भेजता या मैं अपने वास्ते कुछ रखना। That is an agricultural produce which I am selling, not trade. तो एक ट्रेड नो अंडर सेक्शन 33 हाउ दे हैव ब्रॉट इट, मैं नहीं समझाऊंगी, पहले एक्सप्लेन करें। जब लोड सी कि बहस करो पार्लियामेंट से, बहस कराई, व्हाई डिडंट यू बहस तो नहीं कर, बहस कराओ दे और 10 दे कि एक सेक्शन 33 दे अंदर आया, बट वो बहस उन्होंने पता सी कि बहस वास्ते दे हैव नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। ठीक है कि उत्थे लोकसभा के बहस नहीं कराओ, विधानसभा नहीं कराओ, ना कानून पास करो, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज दिस? फिर सदन क्यों बनाए हुए हैं कानून तो बहस नहीं कराओ? आई फाइंड दिस वेरी स्ट्रेंज। और मैंने ये समझ आती है इन्होंने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की की सोच है और कैसे चलना चाहती है, और बीजेपी पार्टी की सोच। आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी एल्स, आई ब्लेम बीजेपी। लोग कहेंगे कि कहो कि जी फलाना उत्थे बैठा सी, ऑर्डिनेंस के विच बैठा सी या नहीं बैठा सी, दीज आर माइनर थिंग्स। आई वांट टू नो कि तुसी जेड़े ये कानून बनाया कैसे बनाया, नंबर 1। सेकेंडली तुसी ये भी सोच रहे कि इस पंजाब की किसानी ने जदों PM फॉरेन लग्या सी उरे, आई थिंक इट वाज 50 सम टाइम, जदों इथों असी बैगी बोलना झोली अड्ड के असी जाके अपने लोगों वास्ते मंगते से चौल या कणक खाण वास्ते, उदों तुसी अमेरिका नाल PM फॉरेन की 10 मिलियन टन तुसी इंपोर्ट किया अपना फीड, ताकि इतने कोई काल ना आ जाए, लोग भुखे ना मरन लग जाए देश। फिर कौन क्या निका जा पंजाब 1.17% साड़ी धरती हिंदुस्तान, 2% तो घट साडे लोग, और उन्होंने उठ के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने नवी कणक मंगाई, मैक्सीको तो आए कणक ਉਹਦੇ ਤੇ वर्क किया, फिर तुसी चौल अपने फिलीपींस ਉਹਦੇ ਤੇ वर्क किया, और 4 सालों के 66 तो लैके 10 सालों के अन्न बाहरों मंगाने की लोड़ नहीं पई। साडे पंजाब ने हिंदुस्तान लोग भुखे मरन तो 70 साल साडा काम चलता रहा, नवीं फसल आईयां, मेहनत की, कणक की धुप के कम की, मर ठंड उत्थे जदों बिल्कुल कोई बाहर जाके थोड़े पैर सुन हो जाते थे, उदों अपने काम किया और करके उन्होंने जाके हिंदुस्तान अपने अपने अन्न खवा के अपने देश को बचाया। भुल गए तुम इस किस्म के कैलस एटीट्यूड है सरकार की कि जो मेहनत होती थी साढ़े पंजाबियों ने 70 साल तुम भुल गए। मैं अपने पंजाबियों की इज्जत कर, हरियाणे वाले, यूपी वेस्ट वाले हुंता क्यों करती है ना, क्योंकि थोड़ा गंगा जमुना बेसन डिवेलप हो गया, उत्थे चौल की पैदावार हो गई, मध्य प्रदेश के कणक होने लग, कावरी बेसन नर्मदा बेसन सारे डिवेलप हो गए, उत्थे चौल की पैदावार हो गई, तो छड़ो पंजाब को मारो, पंजाब को खत्म करो पंजाब को। ये इंसाफ है? आई वुड लाइक द प्राइम मिनिस्टर टू टेल मी ये इंसाफ है? ये बड़ी अफसोस की गल है मैनू कि जदों तुसी लोगों को वरते हो, इत्थे पंजाब की तपी है जिहड़ी अज बॉर्डर से बैठी है और लोगों को उत्थे साडे हिंदुस्तान की गल कर रही है। कदे कोई गया है उत्थे सियाचिन दे विच? पर पोस्ट 22,000 फुट ते और उत्थे साडे उत्थे जवान बैठे, सारी हिंदुस्तान की फौज
पिंडों तो आती है और उन्होंने अज खेतीबाड़ी करते हैं कि सोच रहे हैं उत्थे कि साडा की उत्थे होगा, साडे कैसे कैसे जिएंगे, साडे मापे बैठे ने, साडे बच्चे बैठे ने, कैसे जिएंगे, की कर रही है गवर्नमेंट के विच। मैं रहा 16,000 फुट पे, पर उतो भी मैंने पता सी मुश्किल साह होता सी। 22,000 फुट के लोग बैठे ने। चीन का सारा बॉर्डर 2,000 किलोमीटर, सारा पीर पंजाबी जो पाकिस्तान के नाल लगता है, सियाचिन तुसीं नाम ले लो, जिथे रोज ही साढ़े कोई दिन लंघ जिथे साढ़े कोई जवान नहीं इतने शहीद होंगे। सब पिंडों तो आते ने, सारे खेतीबाड़ी के नाल निर्भर ने। वो की सोच रहे बोल नहीं सकते क्योंकि फौजी बोलता नहीं, दिल के विच तां ओहदी सट वरती है ना कि मेरे परिवार के नाल की होए। सो तुसीं पंजाब दे इत्थे रोज हर दूजे दिन मेरा कोई पंजाबी इत्थे शहीद होंदा है उत्थे बॉर्डर ते। और ये 1.5% 57% लोग ने पंजाब में जो 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 इत्थे देश को रक्षा करते, देश को आने देते और देश को बचाने ने जब संकट आते। तुसीं ये भी भुल जाते हो सारियां गल्लां। ते मैं ये समझना चाहुंदा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आई एम वेरी अनईजी, आई एम वेरी अपसेट। देखो गल ये है, कोई नहीं चाहता अज मेरा देखो अज साडा एक तो कोविड का काल है, दूजे पासे साडी अज अखबार के विच सी किसी अखबार कि इंडस्ट्री की रेवन्यू 40,000 करोड़ रुपये का घाटा पिया इंडस्ट्री को बिकॉज ऑफ कोविड एंड करंट जो फार्मर एजुकेशन है। फार्मर को एजुकेट करने का पूरा अधिकार है, सानू सारे को एजुकेट करने का पूरा अधिकार है, बिकॉज ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के एजुकेट करना ठीक है। असी किसानों नाल खड़े हैं। मैं हम किसानों को जरूर एक गल करांगा जो किसान यूनियन वगैरह ने, हूँ समय आ गया कि असी थोड़ा साडे नाल करो। देखो दो गल्लां हो सकती हैं, इकोनॉमी नूं बनना पंजाब नहीं बन सकता नहीं। अगर असीं समझते हैं कि सिर्फ आपां एक टोल प्लाजा रोक जो सारा रोक दो कोई इहदे नाल कुछ फर्क पैंदा, इहदे नाल कुछ फर्क नहीं पैंदा। फर्क पैंदा है देखो तुसीं कोई बिजली देख लो। अगर अज मेरे को नाभा पावर जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਕੋਲ मेरे सिर्फ एक दिन का स्टॉक है, कल ਨੂੰ खत्म हो जानी है, उत्थे बिजली बंद हो जानी है। तलवंडी साबो साडे कोल 20-10 खत्म हो गया, GVK खत्म हो गया। सिर्फ लहरा रोपड़ के हारे कुछ बोला है कितों खरीदा है, पता नहीं किस इरिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिसर ने अपने विचों पावर बोर्ड को एक बयान दे दिता कि साढ़े को नैशनल ग्रिड तो कितों खरीदते, पैसा कितने थोड़े को खरीदते, साढ़े को पैसा नहीं है। वी डोंट हैव मनी। जिस तरीके नाल इकोनॉमी चल रही है, जिस तरीके नाल इंडस्ट्री बंद पई है, कितों पैसा होगा अपने को। वी हैव टू इफ वी हैव टू बाय वी कांट बाय। आज कोला खरीद के रख ले क्यों नहीं रखा, क्योंकि दे डोंट गेट जरा जिन्ना कोला सीखने दिन तो चल रही है बड़ा खत्म हो गया। 8-10-15 दिन का स्टॉक होता है, तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो एक होता है दैट प्लीज मैं किसान अपने वीरां नूं बेनती करदा असीं तुहाडे नाल खड़े हैं, अकेले दम तक खड़ के पूरा मैनूं पता अज कोई बोल नहीं रहा हाले, पर जदों बोलणगे सारे किसानों के नाल हमदर्दी है और असीं तुहाडे नाल अंत अकेले दम तक तुहाडे नाल खड़ांगे। लेकिन हुण तुहाडा काम है साडे नाल खड़ना। मैं सरकार चलानी है, मेरे फाइनेंस मिनिस्टर ने सिर्फ पैसे देने, मेरी डेवलपमेंट ने इतने सारे मिनिस्टर बैठे ने, उन्होंने पैसा की लोड़ वास्ते। तो इस करके हुण आपां नूं अपना रेगोक वगैरह बंद करो, आपां नूं पंजाब चलाइए आपां और इत्थे अपने जिहड़े कुछ इंडस्ट्री नूं चलाइए। थोड़े कोल हुण सिर्फ 10% यूरिया जिहड़ा कणक की बजाय हो रही है, सिर्फ 10% थोड़े कोल यूरिया। थोड़े कोल जी अज सारे स्टॉक्स भरे पे ने, साडे गोडाउन के जाता ही निकलते नहीं, मैं नवीं झोना कितने रखना। फिर थोड़े को जोड़े तुम फर्टिलाइजर बाहर होने उन्होंने आना है उत्थों। तो ये सारिया चीज़ा हम लिंक ने पंजाब की इकोनॉमी का। पता 40,000 करोड़ का सारा नुकसान हो गया इंडस्ट्री में।
वी कैनॉट अफोर्ड दिस। एक पहली गल है। और दूसरी गल मैं कहना चाहते मैं क्या सी पहला कि लोग कुछ कहते हैं कि तुम ये गल्लां क्यों करते हो, करनियां पैंदियां ने, पर मैं औखी घड़ी के पंजाब देखा। मैं देखा जो 35,000 पंजाबी इतने उन्हें घूम डुलिया सी पंजाब। मैं नहीं चाहता कि एक काम फेल हो गए। और साडा गुआढ़ी मुल्क कोई मौका नहीं छड्डदा जदों ताईं इत्थे आके कोई रौला नहीं पाउंदे। मैं जानना आई होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ मैनू पता है कि कुछ हथियार आते हैं, कैसे आते हैं, किन्ने ड्रोन आते हैं, किन्ने आ चुके, किन्ने हथियार ने, किन्ने टेररिस्ट असीं फड़े ने, किन्ने असीं गैंगस्टर जो टेररिस्टां नाल इन्वॉल्व थे उन्होंने असीं किन्ना फड़िया, सब कुछ देखे। और ये जिहड़ा अगर इहदा हल नहीं निकलता ये मूवमेंट बढ़ेगी कटेगी नहीं। यही होया सी 1984 यही होया सी 90 के कितने बंदे शहीद किए हैं। आप चाहते हैं कि आबहवा खराब हो सकता है। कौन होगा इंडस्ट्री लैके अज ये 3 सालों के 60,000 करोड़ रुपया पंजाब की इन्वेस्टमेंट आया है जो लोग लेके आए हैं। कहते मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये आए वो धरती के उपर लग रहा है साडा इंडस्ट्री। देखो किन्ने ऐसे साड़ी इकोनॉमी किस तरीके इंक्रीज करेगी, साड़ी देखो किन्ने नौकरियों के साधन बनेंगे। उन्होंने आपको सोचना पड़ेगा। स्पीकर साहब ये बहुत जरूरी है कि इस काम को आप रोके। पाकिस्तान नहीं हटेगा। और मैं तुमने और दस देना कर चाइना और पाकिस्तान में कोलूजन है। चाइना और 20 बिलियन डॉलर आके कुंजरे पास से है जितों कारगर महीने आ रही है एक टनल सोने बढ़ाई और ट्रेन लेके जाएंगे अप टू द ग्वादर पोर्ट। उन्होंने इकोनॉमिक अटैचमेंट पाकिस्तान ऐनी होगी कि जब झगड़ा होगा दोनों मुल्क इकट्ठे होंगे। डू वी वांट दैट? डू वी वांट सासी बॉर्डर स्टेट है कितना आप ऐसे सकामेंगे अपना वी देयरफॉर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ और फिर उसी नौजवान उठ जा और इस मूवमेंट के हिस्सा बन जाए फिर दसो पंजाब का कहना कि देश का कहना है। तो ये जरूरी है कि नेशनल सिक्योरिटी को भी सेंटर की गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और पंजाब को जो रोल है एक बॉर्डर स्टेट है और एक सारी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्म्ड फोर्सेस साडी बहुत इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि असी इस गल नूं नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखते हुए बहुत जेडे मेरे को फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं दे आर नॉट स्मॉल फिगर्स इन फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो पता है अगर एक ही प्रपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रपोज कर रही है कि एमएसपी का कॉस्ट अबॉलिश करो सब कुछ, फिर किसानों का जो सारे इकोनॉमिस्टां ने बड़ी फुर्ती नाल अपने आंकड़े कटे ने हाल तक टाइम लगूगा तो फिर दसेंगे कि असी किसान 11,000 करोड़ रुपये का साडा नुकसान हो रहा है साडे पंजाब के किसानी वास्ते। और साडी मंडी बोर्ड है वह 4 से लेकर 5 लाख रुपये का नुकसान है। और मंडी बोर्ड बगैर पिंडा की डिवेलपमेंट नहीं होनी, ना तो लिंक रोड बने ना पिंडा की डिवेलपमेंट होगी, फिर कैसे चलेगा साडा पंजाब। तो इन्होंने कहता कि कोई मंडी बोर्ड होनी नहीं देवा। तीसरी गल फर्टिलाइजर हूँ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने क्या है कि फर्टिलाइजर को हम आप जी सबसिडी देने वो कट के हर किसान को हर फसल वास्ते 2,500 रुपया दे 2,500 रुपये पूरी फसल की खल जिला फर्टिलाइजर सन चाहिए। और जी फर्टिलाइजर की प्रेजेंट की पंजाब कंज्यूम्स 6.25 फर्टिलाइजर जो देश के बिक है। और वो सब्सिडी 5,000 करोड़ है।
आउट ऑफ टोटल एनुअल फर्टिलाइजर सब्सिडी को 80,000 करोड़ 80,000 करोड़ है पूरे देश की फर्टिलाइजर सब्सिडी और उसको 50,000 करोड़ पंजाब की एंटाइटलमेंट ये हम उस हिसाब से कट के 800 करोड़ है which is 4,000 crore loss to the Punjab farm. It will increase the cost of cultivation by 4,000 rupees per acre. Now, ये हाले लोगों ने मन आइया नहीं गल करी आनी पर ये साडा काम इस कदम है ये सामना करिए तो ये जड़िया गल्लां नहीं मैं बोली जावा तो सारा वास्ते बोलते रहो बहुत कुछ है मैं थोड़ा ये गल इस काम से बेनती करना चाहता हूँ ये एक समय आ गया पंजाब को इकट्ठा होना पो और अपनी किसानी नाल खड़ना पाओ खड़े पता है ये हाउस खड़ा है आपा कानून किया वी हैव टू फेस इट सेंटर ने कुछ करिए ना करे तो गवर्नर साहब देंगे पर परमिशन पता नहीं देंगे या नहीं देंगे ना दे फिर लेके जाना पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति जी देंगे या नहीं देंगे लेकिन असी वी विल फाइट दिस इस बैटल को असं जावे हर अदालत के मैं आपके राही दसना चाहूँगा इस हाउस में मैं बहुत कुछ देखे अपनी जिंदगी के 8 साल हो गए जदों ब्लू स्टार होया उदो मैं इस्तीफा दिता पार्लियामेंट मैं लोकसभा मैं समझना 2 चीज़ा होंगे ने जिहदे नाल आप हमारा किसी देश की बिगड़ सकती है किसी सरकार की बिगड़ सकती है और देश की बिगड़ सकती है एक धार्मिक टकराओ और एक अगर तुम किसी के पेट से लत मारो अज पेट से पाई जा रही है मैं उदो इस्तीफा दिता फिर बरनाला सरकार वैसी एग्रीकल्चर देहाती विकास का वजीर उदो भी मैं इस्तीफा दिता जब उन्होंने खंडन किया मैनू इस्तीफा देना कोई नहीं मेरा इस्तीफा तो आप दिया जो मर्जी मैं अपने वास्ते मैनू कटना चाहते मैनू कट दे मैं मेरी सरकार आई हैव नो प्रॉब्लम ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਰਦੇ लेकिन बेइंसाफी जो हुई है सभी किसानों नाल जिस तरीके नाल मिलकर इन्होंने कीते ने जिस तरीके नाल गरीबों का पेट से तुसीं लत मारे हो अमरिंदर सिंह के सामने सिर नहीं झुकाओ देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।